Good morning class. Today we are going to discuss geometrical significance of cross product. Earlier we discussed about cross product, what is cross product, and when two vectors multiplied by cross product, then we get answer vector quantity, and how we give the direction of that vector quantity by using right hand thumb rule as well as screw rule. We can find that direction of that vector quantity. And earlier we discussed about the property of cross product also. Today we are going to discuss the geometrical significance of cross product. We derive some formula, and this formula we can use to solve in numericals. Okay, so what is that? Area of parallelogram whose adjacent side represented by two vectors, a vector and b vector. Suppose we are having, this is the parallelogram, okay, this side is a vector and this side is the b vector, and this is angle theta. Then what is the area of parallelogram? न्यूमेरिकल में अगर हमें इस तरह से पूछा जाता है तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जस्ट यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए इस पर. देन दिस इज ए, सपोज P, Q, R or S. So what is the value of this QM? Suppose what is the value of QM in triangle? What is the value of QM? And we know that what is the area of parallelogram? क्या होता है area of parallelogram? बताएं आप लोग, सोचें क्या होगा? Base into height. क्या होता है parallelogram का area? Base into height. Okay. So what is base? Base is PS. Okay, and what is height? Height is QM. Then PS is modulus of, what is PS? PS is modulus of A vector. So you can write modulus of mod A vector. What is QM? QM क्या हो जाएगा हमारे पास? into QM कर लीजिए, और QM की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? दिस इज थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि साइन थीटा. QM का वैल्यू हो जाएगा मॉड बी वेक्टर साइन थीटा. राइट, निकाल सकते हैं ना बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. तो व्हाट इज द आंसर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास? बेस इनटू हाइट. बेस कितना है? मॉड ए वेक्टर. हाइट कितनी है हमारे पास? QM, दैट इज बी मॉड बी वेक्टर और साइन थीटा. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? अगर टू साइड्स, टू वेक्टर्स, adjacent sides of the parallelogram represented by two vectors, then what is the area of parallelogram? What is the area of parallelogram? Yes, क्या बताएंगे, कैसे करेंगे? लिख लीजिए मॉड. व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? यहाँ से क्या आ रहा है? मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर sin theta. Then we can write modulus of a vector cross b vector. Am I right? ऐसा लिख सकते हैं ना हम. क्यों लिख रहे हैं? ये देखो, ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो हो सकता है ना. ये अर्लियर वी डिस्कस अबाउट दैट. डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो हमने लिख लिया मॉड a क्रॉस b. This is the area of parallelogram. Okay, and what about the area of triangle? If two sides of the triangle is represented by two vectors, okay, what is the area? Area of triangle. Area of triangle. Suppose this is a parallelogram, okay, and this is A vector and this is B vector. If I cut like that, na, so this is again A vector and this is again B vector. Okay. तो what is the area of triangle? पैरेललोग्राम का एरिया क्या था? मॉड A क्रॉस B. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स हो गए ना, 1 और 2, तो हाउ मच? हाफ ऑफ A क्रॉस B. राइट, ये अगेन ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम इसे. राइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? मॉडुलस मॉड A क्रॉस B. मतलब if two sides of the parallelogram represented by two vector, A vector and B vector, then what is the area of parallelogram? Mod A cross B vector. And area of triangle,
is half of mod A cross B vector, right? Number third, if suppose this is the one triangle A, B and C, and the position vector of A, suppose P vector, or position vector of B is given to Q vector, and position vector of C is given by R vector, then what is the area of this triangle? तो इजी था, हमने निकाल लिया. यहाँ पोजीशन वेक्टर गिवन है, देन यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला. बहुत इजी सा है, इजी है फॉर्मूला. हाफ यू कैन राइट P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R प्लस R क्रॉस P. एक ही ऑर्डर में है, देख लीजिए. P क्रॉस Q, देन Q क्रॉस R plus R cross P, or this is mod. This is the formula for if the position vector of 3 points is given to you and that these 3 points are situated at the vertex of any triangle, then what is the area? Area is half P cross Q plus Q cross P plus R cross P, and P, Q, R, the position vector of A, B, C. Okay, and if any quadrilateral like parallelogram or any one quadrilateral, trapezium and any one, if two diagonals is given to you, D1 and D2, then the area of quadrilateral equals to half mod D1 vector cross D2 vector, right? This is again area of quadrilateral. If diagonals is given to you, D1 vector or D2 vector, then what is the area of that quadrilateral? It may be parallelogram, it may be rhombus, it may be trapezium. If you are getting the diagonals, then the area of that quadrilateral equals to half D1 cross D2, mod D1 cross D2. Okay, this is question, and we have to find what is A cross B. Answer find करना है हमें, ये numerical है. Okay, previously we discussed cross product regarding all the things we know. I cross I equals to J cross J equals to K cross K equals to 0, right? Why? Because the angle between I and I is 0, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री. And I cross J equals to K cap, and J cross K cap equals to I cap, K cross I cap equals to J. And similarly J रिवर्स कर देंगे आप इसे, J cross I equals to minus K cap, and K cross J equals to minus I cap, and I cross K equals to minus J cap. We have already discussed all the things in previous lecture. Okay, this is the things we are going to use here. ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पर यूज करने हैं. हाउ टू मल्टीप्लाई यू नो, एक जनरल मैथ्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप सबको पता है. ठीक है, जस्ट राइट डाउन व्हाट इज ए क्रॉस ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, क्रॉस साइन लगाएंगे एंड दैट इज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप. एंड बाय मैथ्स कैसे करेंगे? आई कैप क्रॉस क्या हो जाएगा? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, देन प्लस 2 जे कैप एंड मल्टीप्लाई बाय दिस होल 2 आई कैप, क्रॉस साइन यूज करेंगे 2 आई कैप माइनस 3 जे प्लस के, एंड नेक्स्ट देन व्हाट इज द रिमेनिंग? प्लस 3 के कैप क्रॉस 2 आई कैप माइनस 3 j cap
प्लस के कैप, राइट। इतना हमें आता है मैथ्स, अकॉर्डिंग टू मैथ्स जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रा में वैसे ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्या होगा, आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई 0, फर्स्ट टर्म फिनिश, खत्म। और आप लिख लीजिए नहीं तो आई क्रॉस 2i प्लस प्लस माइनस माइनस आई क्रॉस 3j, ओके, देन प्लस 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 एंड आई क्रॉस के कैप। नेक्स्ट में लिखिए आप प्लस साइन लगाएंगे 2j क्रॉस 2i कैप, प्लस माइनस माइनस 2j क्रॉस 3j एंड प्लस 2j क्रॉस k, ओके। एंड नेक्स्ट देखिए प्लस लगाइए, यहाँ पर आ जाएगा 3k और 2 कितना होगा 3k क्रॉस 2i कैप, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3k क्रॉस 3j, ओके, देन प्लस 3k क्रॉस k, ओके। सो यूज दीज फॉर्मूला हेयर, सारे जो यूज है वो हम यहाँ कर लेते हैं। आई क्रॉस आई क्या होता है 0, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे होता है k कैप, देन माइनस का 3k कैप एंड आई क्रॉस के क्या होता है माइनस का j कैप, ओके, एंड प्लस 2 जा 4, j क्रॉस आई, j क्रॉस क्या आई क्या होगा j क्रॉस आई माइनस का k कैप, ओके, देन अगेन 2 j क्रॉस j कितना होता है 0, ओके, देन 2j क्रॉस k, 2j क्रॉस k क्या होता है i कैप, ओके, एंड देन प्लस 2 3 जा 6 और k क्रॉस i देख लीजिए क्या होगा, k क्रॉस i होगा आपके पास j कैप, ओके, एंड देन माइनस 3 3 जा 9, k क्रॉस j क्या होता है k क्रॉस j माइनस i कैप, इट मीन्स का है माइनस i कैप, k क्रॉस j 3 3 जा 9 और माइनस i कैप, ओके, देन वी कैन, और k क्रॉस k क्या होगा 0, मतलब 6 टर्म्स हमारे पास आनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 3 टर्म्स इज 0, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 एंड k क्रॉस k 0, ओके, देन सॉल्व इट, माइनस 3i कैप और k कैप एंड माइनस 4k कैप, माइनस 7k कैप, एंड दिस इज प्लस 5j कैप एंड दिस इज प्लस 11i कैप, दिस इज आंसर, बट दिस वे इज वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा है और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम्स में होता नहीं है कि हम इसे इस तरह से सॉल्व कर पाए। देन वी कैन सी द अनदर मेथड दैट इज शॉर्टकट और दैट इज यू कैन से बाय द डिटर्मिनेंट, मैथ्स में एक टर्म होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, उसके थ्रू हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें मैथ्स के टर्म में नहीं जाना है, हम तो ईजीएस्ट में जो होगा उससे ही हम इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द शॉर्टकट वो डिस्कस कर लेते हैं हम। पहले आपको लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, आप इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए एंड सबसे पहले लिखिए यहाँ पर आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो यूनिट वेक्टर्स हैं। देन ए, पहले फर्स्ट ए है एंड बाद में बी है, तो कॉफिशिएंट ऑफ ए लिख लीजिए और कॉफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर लिख लीजिए। व्हाट इज दैट 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 along with sign -3 and 1. Oh yes, done. बहुत इजी, क्या किया हमने पहले इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखे यूनिट वेक्टर्स ए आई जे और के, ठीक है। अगर
आई का टर्म नहीं होता तो आई लिखते जरूर, उसका कॉफिशिएंट हम 0 लिख लेते हैं, राइट। और ए की कॉफिशिएंट क्या है वो यहाँ लिख लिया, और बी की कॉफिशिएंट क्या है वो यहाँ पर हमने लिख लिया है, और ये ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना क्लास 10th में, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में, वहाँ भी कुछ इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ओके। देन व्हाट इज द आंसर फॉर ए क्रॉस बी, वेरी फर्स्ट यू टेक आई, क्या यहाँ लिखेंगे, और इस वाले को और इस वाले को हाइड कर लीजिए आप, देन यू मल्टीप्लाई बाय दिस एंड यू मल्टीप्लाई दिस एंड टेक नेगेटिव साइन। आपको क्या करना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको हाइड कर लीजिए, छुपा लीजिए, ठीक है। एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2, एंड 3 को करेंगे तो माइनस का 9 आएगा यहाँ पर, -9, और हर में साइन क्या लगना है, माइनस लगना है यहाँ पर, मतलब मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी इससे जब मल्टीप्लाई करोगे साइन आएगा माइनस का, ओके। देन प्लस जे कैप लिख लीजिए, ओके। अब आप प्लस जे कैप करेंगे तो क्या करेंगे, आप इसे छोड़ देंगे, किस टर्म को, जे वाली टर्म को भूल जाइए, इस वाली टर्म को भूल जाइए, ठीक है। एंड आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा यहाँ पर 6, एंड फिर लगाइए माइनस, क्या आएगा 1 1 जा 1 माइनस का 1, पहले इसे इससे मल्टीप्लाई किया, देन फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लगा लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए प्लस के कैप, ओके, एंड अगेन ठीक है। इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए, इसको हाइड कर लीजिए, इसे इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने पर -3, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस साइन लगाइए 4, एंड सॉल्व इट, आई कैप 2, ओके, माइनस माइनस प्लस 9, देन प्लस जे कैप दैट इज 5, and that is -7 k cap. What is the answer? Answer is क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 i cap plus 5 j cap -7 k cap। ये निकाला था ना हमने प्रीवियस मेथड से, वो लॉन्ग बड़ा है, काफी लॉन्ग है दैट मेथड, और ये क्या है, दिस इज शॉर्टकट। मैथ्स में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स मेथड होता है। कैसे किया हमने, एक बार फिर समझ लीजिए कैसे किया हमने। देखो सबसे पहले क्या किया, पहले हमने यूनिट वेक्टर्स लिख लिए, कौन कौन थे, आई जे और के, ओके। एंड फिर लिखा हमने ए के कॉफिशिएंट, ए पहले लिखा है फर्स्ट में ए, अगर बी पहले होता तो पहले किसके कॉफिशिएंट लिखते, बी के। ए के कॉफिशिएंट राइट डाउन किए 1 2 एंड 3, देन वी राइट डाउन द कॉफिशिएंट ऑफ बी 2 -3 एंड 1, एंड वेरी फर्स्ट वी राइट डाउन आई कैप, then we forget about this, हमने इसको skip कर दिया, multiply by this and multiply by this, 2 को 1 से multiply किया, 2 1 जा 2, साइन यहाँ हमेशा किसका लेना है, माइनस का, एंड 3 3 जा 9, बट किसका आ रहा है वो, माइनस का 3, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -9। देन हमने फिर क्या किया, कौन सी वाली लाइन स्किप की है, जे वाली, जे को ले रहे हैं ना, जिसको ले रहे हैं उस लाइन को स्किप कर जाएंगे, ठीक है। एंड यू मल्टीप्लाई दिस, पहले मल्टीप्लाई किया इसे तो 3 2 जा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है, 1 1 जा 1। फिर क्या किया हमने, के, इसे स्किप कर दिया, इसे इससे मल्टीप्लाई किया और इसे इससे मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट आंसर। हर बार क्या करना है, माइनस लगाना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या माइनस आ रहा है वो छोड़ दीजिए आप, पहला साइन यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और दिस इज डिटर्मिनेंट होते हैं, ये मैट्रिक्स होती है। क्लास 12th में जब आप आएंगे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो वेक्टर्स है मैथ्स के अंदर, वहाँ आप पढ़ेंगे इसे, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टकट वे, ओके। थैंक यू क्लास।